اور فلسطین کے مجاہدین۔ یوں تو اس دنیا میں مسلم ممالک کی تعداد بے شمار ہے، تقریباً 57 مسلم ممالک ہے۔ مسلم ممالک کا مطلب جہاں مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں ہو، اور اکثریت کا مطلب جہاں ان کی تعداد ملک کی کل آبادی کا کم سے کم 51% یا اس سے زیادہ ہو۔ مسلم ممالک میں انڈونیشیا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک ہے، جس کی آبادی 23 کروڑ کے قریب ہے، اور سب سے کم آبادی والا مسلم ملک مالدیپ ہے، جس کی آبادی صرف 3.5 لاکھ ہے۔ مسلم ممالک میں زیادہ تر سنی مسلم ہیں، اور شیعہ ملکوں کی تعداد صرف 3 ہے، یعنی ایران، آذربائیجان اور بحرین۔ سنی یا مسلم ممالک عالم اسلام میں ہر بر اعظم میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلم ممالک بھی ہیں جہاں سنی اور شیعہ مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں، جیسے ترکی، پاکستان، عراق اور یمن وغیرہ۔ جہاں تک ریاست فلسطین کی بات ہے تو فلسطین میں اسلام ایک بڑا مذہب ہے۔ فلسطینی مسلمانوں میں سب سے بڑا فرقہ سنی ہے، جن میں زیادہ تر شافعی ہیں جو کہ 85% ہے، اور 14% غیر فرقہ پرست مسلمان ہیں۔ مسلم ممالک میں حکومت یا تو قدیم طرز کے بادشاہوں کے زیر نگی ہے، یا پھر فوجی حکمراں وہاں پر سر اقتدار ہے۔ تمام مسلم ممالک میں صرف ایک ملک ایران ہے جہاں کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ باقی مسلم ممالک صرف مسلمانوں کی آبادی اور مسلم حکمراں کی وجہ سے اسلامی یا مسلم ممالک کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہبی گروہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسلام کے ماننے والے دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اسلام کے ماننے والوں کی تعداد 1.9 بلین ہے، جو دنیا کی آبادی کا تقریباً 24.7% ہے۔ مسلم ممالک اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کی دنیا بھر میں اجتماعی کوششیں تقریباً 19ویں صدی سے ہی جاری ہے، اور آج بھی جاری ہے، لیکن آج تک اس کوشش کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس کوشش اور مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ایسے تنظیم کی اشد ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے، اور آج بھی محسوس کی جاتی ہے، جو دنیا کے تمام مسلم ممالک اور مسلمانوں کو اجتماعی طور پر متحد کر سکے، مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے مضبوط اور ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ مختلف ممالک میں مختلف سیاسی نظریات ہونے کے باوجود تمام مسلم ممالک کو یکجا کر سکے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب سبھی کی کوشش و کاوش رنگ لائی، اور بالآخر 25 ستمبر 1969 کو تمام مسلم ممالک کی اجتماعی تعاون کی بدولت OIC وجود میں آئی، جس میں سبھی ممالک نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس تنظیم کی تشکیل کا مقصد یروشلم، بیت المقدس یعنی فلسطین میں مسلمانوں کی جو بے شمار مقدس مقامات اسرائیلیوں کے ذریعے چھین لیے گئے، ان کی واپسی اور حفاظت یقینی بنانے، ایک اسرائیلی تحفظ کے ذریعے مسلمانوں کی زیارات کو نقصان پہنچا کر انتہائی ناخوشگوار اور سنگین مسئلہ 21 اگست 1969 کو مسلم ممالک کے سامنے کھڑا کرنے، عالم اسلام میں غصہ کی لہر و غیرت کو مہمیز لگانے، اور عالم اسلام و مسلم ممالک کے رہنما و سربراہان کو مراکش کے شہر رباط میں جمع کرنے پر اس قدر مجبور کر دیا کہ اس میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ مسلم ممالک اور مسلمانوں کو سیاسی، اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور سائنسی شعبوں میں متحد کرنے کے لیے اجتماعی کوشش کی جائے گی، اور مسلمانوں کے درمیان یکجہتی کو فروغ دیا جائے گا۔ اکتوبر 1973 میں عرب اور اسرائیل کے مابین جنگ کے تقریباً 6 ماہ بعد 1974 میں OIC کی اجلاس میں پہلی بار سعودی عرب نے اپنے تیل کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ 1999 میں اس تنظیم کا ایک اور اجلاس ہوا، جس میں تنظیم نے بین الاقوامی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کنونشن کی منظوری دی۔ اپریل 2000 میں ملیشیا میں تنظیم کا ایک اور اجلاس ہوا، جس میں دہشت گردی کے خاتمے سے متعلق امور پر غور کیا گیا، لیکن اس اجلاس میں دہشت گردی کی تعریف پر اتفاق نہ ہو سکا۔ تاہم اس اجلاس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد کو دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو کچلنے کے لیے جو فوجی کارروائیاں اور حملے کر رہا ہے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، اور اس کی شدید مذمت بھی کی گئی۔ اب آئیے ہم OIC تنظیم کی گزشتہ چند دہائیوں کے دوران کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رکن ممالک نے اپنے ہی منظور کردہ اور طے کردہ مقاصد کو پورا کرنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور قرارداد کے سوا عملی اقدامات نہیں کیے۔
तंजीम के मकासद के हुसूल के लिए कोई कामयाबियाँ हासिल नहीं की और ऐसा लगने लगा कि उनके सारे दावे लफ्ज़ी और ज़ुबानी थे, अमली तौर पर उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। इसलिए इस तंजीम का असर और रसूख बैनुल-अक़वामी सतह पर कम होता गया। सभी मुस्लिम हुक्मरानों के लिए निहायत ही गौर व फिक्र और सोचने का मकाम है। ये तंजीम उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय रुकन ममालिक अपने अपने मफादात के लिए काम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, जिससे तंजीम की सलाहियत और कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ा और इस्लामी या फिर मुस्लिम ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सका। आज भी इस तंजीम की अशद ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब फ़िलिस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक के मज़लूम मुसलमानों की सदाएँ कानों में आती हैं, जो मुसलमानों से, मुस्लिम हुक्मरानों से, OIC से रो रो कर ये कहते नजर आते हैं कि क्या कोई मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम हुक्मरान है जो मज़लूम मुसलमानों के लिए बातिल से मुकाबला कर सके और उनकी हर मुमकिन मदद कर सके, उनके बाल बच्चों की जान-माल की हिफाजत के खातिर मैदान जंग में उन मज़लूमों का साथ दे सके। आज हर मुस्लिम ममालिक सिर्फ बातों को ये कहते नजर आ रहा है कि फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर इजराइल का हमला और कार्रवाई करना सही नहीं है, लेकिन इजराइल को किसी भी मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम हुक्मरान का कोई खौफ नहीं है, जबकि इसके बरअक्स वो फ़िलिस्तीन और हमास के मुजाहिदीन को निस्त-व-नाबूद करने की मज़ीद बेबाकी से धमकियाँ दे रहा है और हमले भी मज़ीद और तेज़ करता जा रहा है। इधर कोई भी मुस्लिम ममालिक ज़बानी धमकियाँ देने के सिवा कोई अमली या जवाबी कार्रवाई इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं कर रहा है। तकरीबन 57 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन सदियों से इज्तिमाई इत्तेहाद की कोशिश आज भी नाकाम है। इसलिए एक शेर मुस्लिम ममालिक और हुक्मरान की गैरत के लिए पेश करना चाहता हूँ। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। फिलिस्तीन एक ऐसा मुस्लिम रियासत है जहाँ इसराइल और यहूदियों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। आज मुझे हिटलर की वो बातें याद आ रही हैं जब उसने कहा था कि तारीख मुझे बुरा कहेगी, जालिम कहेगी, लेकिन मैंने लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया, उन्हें जान से मार दिया। लेकिन एक दिन आएगा जब लोग मेरे फैसले को समझेंगे, मेरे फैसले से इत्तेफाक करेंगे कि मैंने इजराइलियों और यहूदियों को क्यों कत्ल किया था। आज हिटलर की बातें हकीकत में समझ आती है कि उसने जो किया था बिल्कुल सही किया था कि 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया और 10% को जिंदा छोड़ दिया। आज यही हाल 90% फिलिस्तीनियों का है, जिसे इजराइल को यहूदी निस्त-व-नाबूद कर देना चाहते हैं और यहूदियों को फिलिस्तीनियों का हाल कर देना चाहते हैं, जिसके जिम्मेदार तमाम मुस्लिम ममालिक और हुक्मरान हैं। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, रियासत सिर्फ फिलिस्तीन है, इजराइल रियासत नहीं है। इजराइल एक नापाक वजूद है, लेकिन अब तक सारी दुनिया फिलिस्तीन को जालिम और इजराइल को मजलूम साबित करने में लगी हुई है। OIC इतनी बड़ी तंजीम होने के बावजूद फिलिस्तीन की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रही है। इजराइलियों की तादाद तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ है और मुसलमानों की तकरीबन 2 अरब से ज़ायद है, लेकिन 1 करोड़ इसराइलियों ने मुसलमानों का जीना दुश्वार कर रखा है। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए निहायत शर्म की बात है, ये इजराइली मजलूम फिलिस्तीनियों को नहीं बल्कि मजलूम मुसलमानों को मार रहे हैं। उनकी लड़ाई फिलिस्तीन से नहीं बल्कि मुसलमानों से है। उनकी तादाद कम होने के बावजूद मुसलमानों को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उन्हें 100% यकीन हो गया है कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, उनके पास गैरत भी नहीं है, उनके पास ईमानी जज्बा नहीं है, उनके पास इत्तेहाद भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कुरान भी नहीं है, इबादत भी नहीं है, इमाम और रहबर भी नहीं है, उनके पास तवक्कुल अल्लाह भी नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फिरका परस्ती है। एक वक्त था जब हम 313 थे और कच्चे मस्जिदों में पक्के मुसलमान थे। आज हम 2 अरब से ज़्यादा हैं, लेकिन पक्के मस्जिदों में कच्चे मुसलमान हैं। हम मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों को यह हकीकत समझना होगा कि ये इजराइल नहीं है बल्कि अमेरिका का पाला हुआ वो पालतू कुत्ता है, जिसे मुसलमानों को काटने और हलाक को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है। आज हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा कि जिन मुजाहिदों ने इजराइल पर हमला किया है उन्होंने बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक़सा की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी है। उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए ऐसा किया है, मुस्लिम हुक्मरानों को झंझोड़ने के लिए ऐसा किया है, गफलत की नींद से जगाने के लिए किया है। हकीकत में फिलिस्तीन के मुजाहिद है, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ कुर्बान करने वाले मोमिन और अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिन्हें अमेरिका जैसी नापाक सोच रखने वाले तमाम बातें ताकतें दहशतगर्द करार देने में लग
गई है। तमाम यहूदी एजेंसियां, न्यूज चैनल इन मुजाहिदीन को अभी से दहशतगर्द पुकारने लगा है, जैसा कि इससे पहले भी दहशतगर्दी का नाम देकर कई मुस्लिम ममालिक मुजाहिदीन इस्लाम को अमरीकी व इजरायली ताकतों ने मिलकर खत्म करने का काम किया था, जिनमें सद्दाम हुसैन का नाम सर फेरिस्त है। सद्दाम हुसैन के कई ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आज भी अरब उन्हें नहीं भूल पाया। उन कामों में से एक काम ये था कि सद्दाम हुसैन ने इन इजराइलियों और यहूदियों से निपटने के लिए एक ऐसी फौज तैयार कर रखी थी जो इजराइलियों को फिलिस्तीन में घुसने से रोके रखती थी। और फिलिस्तीन इसराइल जंग में जिन फिलिस्तीनियों के घर तबाह हो गए थे, सद्दाम हुसैन ने उन सबको नए घर बनवा कर दिए थे। उनका दूसरा काम ये था कि वो पहले ऐसे अरब हुक्मरान थे जो चाहते थे कि अरब की पहचान सारी दुनिया में अलग हो, और इसी वजह से उन्होंने मॉडर्न हथियार बनाने का कारखाना लगाया था, जिसे दहशतगर्दी के नाम पर शहीद कर दिया गया। आज वही काम फिलिस्तीन के अंदर फिर से यहूदी और इजराइल मिलकर कर रहे हैं। हमास के मुजाहिदीन ने वो काम करके दिखाया है जिसे बड़े से बड़े मुस्लिम ममालिक को हुक्मरान नहीं कर सके, जो शरीयत के तकाजे के मुताबिक है, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि हमास ने हमला क्यों किया, हमास ने जो हमला किया है वो गलत है। तो फिर मेरा दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों से सवाल है कि ये अमन पसंद लोग उस वक्त कहाँ थे जब इन फिलिस्तीनी लोगों को सालों से मारा जा रहा था, जिनकी माओ बहनों की इज्जत को दरदार किया जाता रहा था, जिनको अपने ही घरों से बेघर किया जाता रहा था, जिनको अपने ही घरों में कैदी बनकर जिंदगी गुजारने को मजबूर किया जाता रहा था, जिनकी जमीनों को कब्जा किया जाता रहा था, जिनके बच्चे को बैतुल मक़दिस जैसे मुक़द्दस शहर में शहीद किया जाता रहा था, जहाँ मस्जिद अक्सा में सहूनी ताकतें दमदमाते फिरते रहते थे और आज भी दमदमाते फिरते रहते हैं। मैं ऐसे फिलिस्तीन के मुजाहिदों को सलाम करता हूँ, हमास के मुजाहिदों को सलाम पेश करता हूँ, उनके जद्दोजहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने फिलिस्तीन के अंदर इजराइल जैसी मजबूत बात ताकत के सामने सर कटाना पसंद किया मगर सर झुकाना पसंद नहीं किया, बल्कि उनसे लड़ने की हिम्मत दिखाई। आज में मुसम्मम किया कि बातिल को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अब बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा को इन नापाक इजराइलियों से पाक करके ही दम लिया जाएगा इंशाअल्लाह। साथ ही साथ हमास तंजीम और फिलिस्तीन के मुजाहिदीन की तरफ से मदद की दरख्वास्त करते हुए मुस्लिम हुक्मरान से ये कहा जा रहा है कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ मुस्लिम हुक्मरान, ऐ मुस्लिम सिपाहियों, ऐ गयूर मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ उम्मत के खैरखा लोगों, तुम मुझे 10% असलहा मुहैया करा दो और कल बैतुल मक़दिस में जाकर नमाज पढ़ लो। ऐ मुस्लिम हुक्मरानों, ऐ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, अपनी गैरत पकड़ो, मुसलमानों का साथ दो उस बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा की हिफाजत की खातिर जिसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है ये मुसलमानों का पहला किबला है। यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। काबा शरीफ के बाद सिर्फ मस्जिद अक्सा का भी कुरान पाक में मिलता है। अल्लाह ने खुद इस जगह को मुक़द्दस कहा है। दुनिया में सिर्फ एक यही जगह है जहाँ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मुक़द्दस ज़मीन पर बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत की थी वगैरह वगैरह। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की तरफ से ये सदाएं आ रही हैं जिनकी माएँ, बहनें, भाई, बाप, बच्चे, बीवी, शौहर चीख चीख कर हमसे ये कह रहे हैं कि खून में रंगीन हूँ, इस कदर गमगीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं मुजाहिदीन हूँ। ऐ मुजाहिद उठ जरा, हाथ में तलवार उठा, मस्जिद अक्सा छुड़ा, बैतुल मक़दिस बचा। ऐ मुसलमानों उठो, फिलिस्तीन की सदा सुनो, मासूमों की हिफाजत करो। अब तो अपनी गैरत पकड़ो, खून में रंगीन हूँ, इस कदर गमगीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं मुजाहिदीन हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन फिलिस्तीनियों और मुजाहिदों की गैर से मदद फरमाए। आमीन।